Gopal Roy ji, who is also a former minister, former PCC president, CLP leader of Tripura state, most leader in the northeast, and he has been appointed as a Pradesh returning officer by the All India Congress Committee, the Central Election Authority of AICC. He guided us effectively for conducting smooth conduct of elections right from the very beginning, from grassroots level, the block committee, district committee, and AICC members, PCC delegates, all processes have been completed. Now, the President for Indian National Congress Party is taking place today, the 17th October. It started the voting process from 10 a.m. and it will be completed by 4 p.m. today. I must express my grateful thanks to Mr. Roy ji for his taking trouble to come over here, right from Delhi to Itanagar, since last night, all night long journey from Guwahati is very difficult. So is one of the best way of the conducting elections, and it will strengthen the spirit of democracy right from the party and to the general elections. And Congress Party is only a party, one of the largest and oldest party in the country, in the world, who maintain this highest standard of democracy process for conducting the free and fair elections within the party. And this will strengthen the democracy process of the party as well as in the state. And it will strengthen secularism in the country. Most of the leaders came from districts, blocks, they participated, and including our CLP leader, their friend Lambo Taingji, and senior most member, former Home Minister, Achitanga Byalingji, all they came and voted, and many more PCC delegates and members. So we hope that this election process will strengthen our secular democracy in the country. We have two candidates, Mallikarjun Kharge, which is senior most leader in the party, and Shashi Tharoor ji, the most senior most and learned member of the Congress Party. Both are potential candidate, and within the party they are family members. We hope both of them will work together in the party to strengthen the Congress Party in the country. कांग्रेस का ऊपर में सर पहले से एक आरोप था कि परिवारवाद को कभी मतलब परिवारवाद से कभी नहीं निकलेगा, लेकिन अभी इस वक्त देखा गया आप लोग का हिस्टोरी में कि आप लोग नया एक प्रेसिडेंट चुनने जा रहे हैं। तो सर आप क्या आशा करते हैं, और हम लोग का स्टेट जो कांग्रेस है वो पार्टी क्या आशा करते हैं कि फ्यूचर में जाके हम लोग का जो नया लीडर जो परिवारवाद का तो जो प्रश्न है वो पहले से लोग बनाते रहते हैं, वो गलत है, तो उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। बीच में कितना कांग्रेस प्रेसिडेंट बदला, कांग्रेस गांधी परिवार से भी बाहर में कितना कांग्रेस प्रेसिडेंट बना, और हम लोग मालूम है, बचपन से हम लोग जानते हैं कितना प्रधानमंत्री बन गया नॉन गांधी का। लोग ऐसे गांधी परिवार सेक्रीफाइस परिवार है, देश को बनाने वाला, देश को रक्षा करने वाला, देश को लाने वाला परिवार है, उसको लोग जलते हैं। तो इस प्रकार से जो गांधी फैमिली ने सेक्रीफाइस किया, ऐसे दुनिया में कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, वो सबको मालूम है। तो इन लोग का बोलना है, क्योंकि ऐसा नहीं बोलेगा तो उन लोगों को तो कुछ इशू मिलता नहीं है, तो इशू बनाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो गलत है। तो अभी भी
यहाँ तो कोई गांधी कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ तो नॉन गांधी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वो भी अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रदेश से। तो इसमें कोई गांधी है ही नहीं है। फिर भी लोग बोलेंगे ये तो गांधी पीछे में होगा, आगे में होगा, दाहिने में होगा, बाएं में होगा, हर प्रकार का बोलेगा, लेकिन वो तो पैदा नहीं है ना बोलने में। कुछ और लोग को भी बोल सकते हैं। जो लोग पार्टी के अंदर में इलेक्शन नहीं कंडक्ट नहीं कर सकते हैं वो लोग बोलते हैं। जो सेकुलर डेमोक्रेसी को जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग बोलते हैं। जो कोई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है अपॉइंटमेंट से आज तो प्रेसिडेंट है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जो ऐसे जो पार्टी है जो कभी उस पार्टी में इलेक्शन हुआ ही नहीं है, इस पार्टी में कोई इनर डेमोक्रेसी है ही नहीं है, तो वो लोग बोलते हैं ना। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो NSY में भी इलेक्शन होता है, यूथ कांग्रेस में भी इलेक्शन होता है, अभी पेरेंट कांग्रेस में भी इलेक्शन होता है। तो यही पार्टी है जो डेमोक्रेसी को बनाने वाला, वो डेमोक्रेसी को हम लोग मेंटेन करेंगे और उसको और मजबूत करेंगे। सर, इस बार का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर इज मिस्टर खागे जी। ही इज द मोस्ट सीनियर मोस्ट एंड अदर वन कंटेस्टिंग अगेंस्ट हिम इज मिस्टर शशि थरूर, वन ऑफ द मोस्ट लर्नड वन। इन योर पर्सनल व्यू, whom do you want to see as a president? दोनों में से कोई भी बनेगा तो कांग्रेस ही है। हम चाहते हैं जो दोनों प्रेसिडेंट जीतो या हारो, दोनों मिलके काम करें कांग्रेस पार्टी के। और सर लास्टली, अभी जो इंसुइंग PCC जो इलेक्शन होने वाला है, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए सर। PCC का बारे में मुझे मालूम नहीं है। PCC का तो जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन, DCC लोग तो इलेक्शन हो गया है। PCC का इलेक्शन कराना नहीं कराना हो तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करेगा, और यह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है, वो लोग तय करें। सर हम एक अलग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप, हालांकि ये मुद्दा का साथ नहीं जुड़ा है। सर स्टेट में हम लोग का देखा जाए तो अभी बहुत सारा बर्निंग इशू चल रहे हैं, जैसे कि APPSC जो फियास्को हो गया और बहुत सारा ऐसे जो प्रोटेस्ट हो गया। सर उसमें आपका क्या कमेंट रहेगा, क्योंकि आप फॉर्मर CM रह चुके हैं, बहुत सारा आपका एक्सपीरियंस है सर, उसमें क्या कमेंट रहेंगे आपका? APSC में जो पेपर लीक का जो इशू है वो तो बहुत गलत है, निंदनीय है, और इस प्रकार से काम नहीं करना चाहता। लोगों का विश्वास को तोड़ा है, हर आम जनता का विश्वास को, जो विशेष करके नौजवान युवकों का जो विश्वास है, जो अभी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो पढ़ रहा है उनका भविष्य के लिए, उसका विश्वास को ख़त्म किया है। तो इसलिए हर सिटीजन, अरुणाचल का कोई भी सिटीजन उसको निंदा करेगा, उसको सरकार कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए, जो भी ले सकते हैं लेना चाहिए, वो कर ही रहा। हम न्यूज़ में देखा था कि वो केस इंक्वायरी चल रहा है और एक्शन भी ले रहा है, कोई अरेस्ट भी हो रहा है, और CBI को भी केस रिफर किया है, उनका जांच होगा। और आगे फ्यूचर के लिए इस प्रकार से घटना नहीं घटने के लिए, नहीं होने के लिए सरकार अच्छा से कानून बनाना चाहिए, उसका जो गाइडलाइन तैयार करना चाहिए। यस Sir, I also have a question that's related to this election. So recently एक खबर आया था कि 2 युवा अंजौ डिस्ट्रिक्ट से गायब है। 19 अगस्त से उन लोग मिसिंग है, बट FIR जो 9 अक्टूबर को रजिस्टर किया गया था, लेकिन there's been no significant reaction from the government. So आपको क्या कहना चाहिए? अंजौ डिस्ट्रिक्ट से गायब हो गया, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से उन लोग मिसिंग है, तो लाइक देयर हैज बीन नो सिग्निफिकेंट रिएक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। मेरा नॉलेज में तो उसका नहीं आया है, लेकिन वो अरुणाचल से कोई भी भाई बहन या कोई भी जो सिटीजन गायब होगा तो सरकार एक्शन लेना चाहिए। विशेष करके तो भारत सरकार लोग एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर में आम आदमी को तो एलो नहीं किया जाता वहाँ जाने के लिए। वहाँ जाने के लिए भी, बॉर्डर में जाने के लिए भी आर्मी से परमिशन लेना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेना पड़ता है। अगर कोई इस प्रकार से घटना हुआ है तो उसको इमीडिएटली भारत सरकार टेक ओवर करना चाहिए और रेस्क्यू करना चाहिए। वहाँ से अगर बॉर्डर में क्रॉस कर दिया या वहाँ लोगों को पकड़ा गया तो उससे सरकार की बातचीत करके उसको इमीडिएटली रेस्क्यू करना चाहिए।
सर अभी का समय में सोशल मीडिया में अगर देखा जाए तो आई सपोर्ट पेमा खांडू बोल के एक बहुत बड़ा एक मुहिम चल रहा है। बहुत सारा एमएलए अपना दीपी को सेंस करके आई सपोर्ट पेमा खांडू लगाए हैं। तो सर आप जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, बहुत फॉर्मर सीएम रह चुका है, आपको क्या लगता है सर बीजेपी में क्या मतभेद हुआ है क्या, कुछ ऐसे मतलब दो पार्टी हुआ है क्या अंदर में? मैं भी तो मीडिया में ही सुनता हूँ, आप लोग का जरिए हम लोग को देखने के लिए मिलता है, सुनने के लिए मिलता है, और पब्लिक लोग बताते हैं कि वहाँ अलग अलग का विषय से अलग अलग का प्रोग्राम चल रहा है। और अपना पार्टी पे अगर सपोर्ट लीडर को करता है तो करेंगे, उसको हमें क्या कहेगा। हम तो अलग पार्टी है ना, बीजेपी पार्टी का अंदर में अगर उसका लीडर को अगर कोई वर्कर सपोर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, उसका तो हम गलत बोला बोल के तो नहीं बोल सकिएगा लेकिन ना। सर ऐसे क्या मुसीबत आ गया कि एक समय में ही वो लीडर को सब लोग सपोर्ट करना शुरू कर दिया? हाँ, वो तो यहाँ धरना बैठने वाला से भी सुनता हूँ कि वो बोलता है कि हम बीजेपी है, हम बीजेपी को वोट मारा है, एमपी को वोट मारा है, एमएलए को वोट मारा है, मुख्यमंत्री बनाया है, मंत्री बनाया है। और जो लोग पैदल से यात्रा जाने वाला पार्टी, धरना बैठने वाला पार्टी, वो लोग भी बताते हैं कि हम बीजेपी पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी का सरकार हमने बनाया है, मंत्री हमने बनाया है, केंद्र मंत्री भी बनाया है, एमपी एमएलए बनाया है। वो लोग खुद ही क्लेम करते हैं। तो इससे लगता है कि शायद उनका बीजेपी का घर में कुछ गड़बड़ चल रहा है आपस में, ऐसे लगता है। हम लोग तो कुछ बोला नहीं, हम लोग को तो कोई पूछा भी नहीं है। और कांग्रेस को लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है। कांग्रेस पार्टी हम लोग देख रहा है कि उन लोग का घर में अंदर में क्या क्या हो रहा है, हम लोग तो कुछ नहीं सकते ना। लोग तो आपस का मामला है ना, वो लोग आपस में बात करने दीजिए, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं। जब वो बात करके बाहर आएगा तब हम लोग बात करेंगे। सर आप एसी का टीम को क्या कहेंगे दिल्ली में जो रह रहे हैं? सर एडिंग टू हर क्वेश्चन, एसी बोल रहे हैं कि पेमा गवर्नमेंट में बहुत सारे करप्शन हो रहे हैं, आपको क्या लगता है करप्शन हो रहे हैं क्या? करप्शन तो दुनिया में हो रहा है, देश में भी हो रहा है, हर प्रदेश में हो रहा है। और अरुणाचल में तो करप्शन तो पहले से है, और जो भी सरकार में है उसका ऊपर में एलिगेशन तो आता है। उसका कंट्रोल करना, उसको कंटेन करना और उसको करप्शन को रोकने का काम तो वो अथॉरिटी का होता है, वो सरकार का ही होता है। जो अथॉरिटी में है, चेयर में है, वो लोग कंट्रोल करना है। जो मालिक है वो कंट्रोल करना है, क्योंकि जो पैसा सेंटर से आओ वो पब्लिक का टैक्स पेयर पैसा है, स्टेट से आओ वो भी हमारा जो रिसोर्सेज का पैसा है, जो हमारा टैक्स कलेक्शन से अलग अलग सोर्सेज से जो आते हैं, जो टैक्स रेवेन्यू से, नॉन टैक्स रेवेन्यू से, हर प्रकार से लोग आते हैं। हम जो खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, वहाँ तो जीएसटी करते हैं। तो हम सभी लोग, चाहे मीडिया हो या आम जनता हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, हम सब टैक्स देते हैं। जो भी कुछ खरीदते हैं हम लोग टैक्स देने वाला है। वी आर ऑल इक्वली इम्पोर्टेंट, वी आर टैक्स पेयर। तो हमारा टैक्स पेयर जो टैक्स के कलेक्शन वाला पैसा को उसको मिसयूज होने नहीं देना है, गलत तरीक़ा से इस्तेमाल नहीं करना है, उसको सही काम में लगाना है। रास्ता बनाने में, स्कूल हॉस्पिटल बनाने में, आपका जो खेती बागान और अनेक प्रकार का जो प्रोजेक्ट काम करवाने में लगाना चाहिए। लोगों का सुविधा के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके लिए पैसा को लगाना चाहिए। अगर कोई जिस प्रकार से जो एलिगेशन आ रहा है आरटीआई से, अगर वो सही है तो गलत है, उसका इंक्वायरी होना चाहिए। मेरा कोलिग ने जैसे आपको पूछा है कि सर करप्शन के बारे में, आप लोग भारत जोड़ो जो यात्रा आप लोग चलाया था, तो पूरा अरुणाचल में आप भी दौरा किया है, कांग्रेस कमेटी भी आपका दौरा किया है, तो आप लोग गांव में जाके क्या दिखाया है? सच में कुछ रोड डेवलपमेंट रोड सेक्टर में हो गया या आपका जो कम्युनिकेशन में कैसे सर डेवलप हुआ है कि पूरा करप्शन ही हुआ है? देखिए, भारत जोड़ो जो यात्रा है वो एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक मूवमेंट है। और ये मूवमेंट भारत जोड़ो यात्रा क्यों तय किया है जो कांग्रेस पार्टी, विशेषकर जो राहुल गांधी जी का लीडरशिप में, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपका जैसे मीडिया लोग मेजर इश्यूज़ है, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है देश का, विदेश का और आपका लोकल जो रीजनल इश्यूज़ है, जितना इश्यूज़ को आवाज़ नहीं बन पा रहा था, नहीं सुन रहा था। पार्लियामेंट में हमारा एमपी लोग गया,
ओपोजिशन पार्टी लोग कुछ भी आवाज़ वहाँ उठाने से उसको तो अरेस्ट किया जाता है, पार्लियामेंट में सस्पेंड हो जाता है, बोलने मौका नहीं दिया जाता है। और पार्लियामेंट में जो भी आवाज़ उठाएगा, जो भी उसका खिलाफ में कुछ बोलेगा, उसके ऊपर में इंक्वायरी हो जाता है, उसके पीछे CBI और ED लग जाता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि ठीक है, हाँ, गाँव तक आवाज़ पहुंचाने के लिए, आम जनता तक आवाज़ पहुंचाने के लिए एक ही तरीका है कि भारत जोड़ो यात्रा, कि हम गाँव की ओर चले, लोगों का पास चले और हम बताएं कि देश कैसे चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है और देश किस प्रकार से टूट रहा है, किस प्रकार से लोगों का अभी कोई गायब हो रहा है, कोई मर्डर हो रहा है, उसके पीछे कोई एक्शन नहीं है, क्यों किसी को रेप हो रहा है, किसी को किडनैप हो रहा है, उसका पीछे कोई एक्शन नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, उसके लिए कुछ कानून नहीं है। और लोग दर दर करके कहीं भी जाओ, लोग दर दर के जाना पड़ता है। ट्रेन में जाओ वहाँ भी डरना पड़ता है, प्लेन में जाओ वहाँ भी डरना पड़ता है, बस में जाओ वहाँ भी डरना पड़ता है, कोई भी प्रदेश में जाओ वहाँ भी एक दूसरे को विश्वास नहीं है, कमज़ोर होके जाना पड़ता है, दर दर करके जीना पड़ता है। कब मेरा घर में ED आएगा, कब मेरा घर में CBI आएगा, कब मेरा घर में इंक्वायरी आएगा, इस प्रकार से लोग डरा हुआ है। तो इसलिए भारत अभी डरा हुआ है, उसको मजबूत करने के लिए ये भारत जोड़ो आंदोलन है। और लोग भूखा मर रहा है, उसका बाद खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर इनकम टैक्स तो इतना लगा हुआ है, जो GST इतना लगा हुआ है, GST रेट डेली बढ़ रहा है। जिस समय में जब कांग्रेस सरकार में जो टैक्स था, वैल्यू एडेड टैक्स सिर्फ 4% था, सिर्फ 4%, पूरा हर साल कुछ भी सामान खरीदो 4% देना पड़ता था। अभी आप आपको देखिए, अभी 12% है हर आइटम में। और कोई भी रेस्टोरेंट में, होटल में आप जाओगे, अब वहाँ रिसीप को, मनी रिसीप को देख लीजिए, वहाँ में लिखेगा कि CGST 9%, SGST 9%, 18%। CGST मैंने सेंट्रल GST, SGST मतलब स्टेट GST, और एक IGST, इंटर स्टेट GST। 3 प्रकार से वो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं। एक सामान को वहाँ असम से भी टैक्स दे के खरीदेगा, ईटानगर लेके आएगा, यहाँ भी फिर अनदर 18% दे के खरीदेगा, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट ले जाएगा, वहाँ फिर 18% कटेगा। एक सामान को कितना बार टैक्स ले, आप सोच के देखिए, तो मालिक के लिए क्या बचेगा। तो इसी का हम लोग खिलाफ कर रहे हैं कि पब्लिक को बता रहे हैं कि ये टैक्स, ये सरकार इतना लोगों को क्यों लूट रहा है, इतना क्यों तकलीफ दे रहा है, कितना टैक्स क्यों कलेक्ट कर रहा है। इसलिए हम लोग इसका विरोध में हम लोग बात कर रहे हैं।